by starting the very first step of your research process, that is brainstorming. The very first step that you do, this which is more of your thoughts, more of your ideas, is that you do a brainstorming. आप brainstorming करते हैं, you try to have a discussion with yourself, try to understand which area of your field interests you more, in which area you are interested to do your research work. And this brainstorming doesn't go well until unless you read about your field. So how does brainstorming starts? You start thinking, then what you do, to give one direction to your thinking, you start reading. This is called reviewing literature. And reviewing literature helps you in understanding your research area. So for the step of research problem, you start with brainstorming. To have proper direction, you read literature. Now when we are saying brainstorming at the very first stage, then what literature you would be reviewing? किस तरह का literature आप review कर रहे होंगे इस time पे? Literature of your field. So if your field is mass communication, or let's say your field is journalism, then what you're doing? You're doing the review related to journalism. What is journalism? How can we understand print journalism? How can we understand broadcast journalism? How it is different? Which has what kind of nature, what kind of characteristics? What is the medium used? What is the gratification that people seek from one kind of media? So you start reading about your field. Then what you do? You start, on the basis of your reading, you start creating sub areas within your broader area. सब एरियाज कैसे बनेंगे? अभी हम बात करते हैं जर्नलिज्म के. सब एरियाज कुड बी likewise, अभी मैंने जैसे बोला था, सेम वैसे ही you could talk about print journalism, you could say broadcast journalism. Within broadcast, you could say TV journalism or radio journalism, or you could talk about more contemporary, that is online journalism, web journalism. And then इसको भी और आप सब डिवाइड कर देंगे. You could say that I would like to, I would like to go about print journalism, but then in print, I would like to have more focus on the sports section, maybe on the business section, maybe on the economic section, maybe on the political section, or maybe on the just the editorial, how editorials are written, how editorials are shaped, how editorials, they carry the soul of the newspaper. So you could take different areas, or even if not newspaper section, then you can simply say I would like to just do research more detailed about maybe reporters, maybe editors, or the you could say the copy editors, the other different sections that you have. Even you can go into magazine section, even if you want to go into print journalism, but into how do you have readership, how do you give certain points to one newspaper, which newspaper has higher readership, what are the reasons, which is the most read newspaper, something like that. So you start dividing sub areas, and after dividing sub areas, finally what you do, before writing your research questions, before framing your main research question that will help you in writing your hypothesis, you again read about the narrowed sub area you have defined. For example, if I have defined editorial, how editorials, they carry the soul of the newspaper, how does it reflect the major thinking of the newspaper. So my area within journalism, within print journalism, within newspaper, कितना narrow down यहाँ पर हो चुका है is editorials that are written by sometimes editors, sometimes known people, sometimes celebs, sometimes experts. So my focus is on editorial. इतना जब आपने अपना नैरो डाउन कर लिया है रिसर्च प्रॉब्लम को, तो आप यहाँ पर you will
read more about the literature related editorial. तो एडिटोरियल से जुड़ा हुआ जो भी लिटरेचर है, जिस भी तरह का रीडिंग मटेरियल, वीडियोस, इंटरव्यूज, other kind of reports are available to you, you will read them. Books published, thesis done, ये सारे तरह का जो मटेरियल है इनको आप पढ़ेंगे, इनको समझेंगे और इनसे एक निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, which will help you in understanding your research problem much more clearly and in much more detail. और जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी, देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल बी गिविंग टाइम टू फ्रेम इट. रिसर्च क्वेश्चन को आप फ्रेम करोगे और रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर. वन इज यू कैन रिमेंबर द पीपल इन्वॉल्व, यानी कि किन के कॉन्टेक्स्ट में आपका ये रिसर्च प्रॉब्लम है. If I'm talking about some regional newspaper, then maybe I'm more concerned about the social cultural groups there, political groups there. If I'm talking about national newspaper, international newspaper, then I also have in concern the central government or the major political force in the country and how the editorials are kind of monitoring it, kind of putting up their constructive note about it. So people involved, किस तरह के लोग, किस section के जो लोग हैं वो involved हैं. Then you have the idea of phenomena that are working. नॉर्मली किस तरह के नोशंस अटैच्ड हैं एडिटोरियल्स के साथ, कैसे नोशन अटैच्ड होते हैं, दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन राइट इट, the editors can write it, those who have knowledge in their field, those who have experience of their field, they can write specific editorials. So it is a piece of writing which carries a very strong opinion. तो इस तरह के जो फेनोमेना अटैच्ड हैं एडिटोरियल्स के साथ, उनके बारे में आप बात करेंगे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे. देन व्हाट यू विल बी डूइंग, देन यू विल बी वर्किंग ऑन टू फ्रेम योर क्वेश्चन. ये सारी चीज़ों का वो डिस्कस करने के बाद आपने रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करोगे. रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए एक सिंपल क्वेश्चन मार्क की यहाँ पर बात नहीं है. द आइडिया इज व्हाट यू आर लुकिंग इनटू योर रिसर्च प्रॉब्लम. आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम में क्या चीज़ देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई idea of doing a research in context of editorial is to know how an editorial for a newspaper carries the opinion, silent opinion of that newspaper, or carries the political standing of that newspaper. So the question that I'll be writing is how an editorial carries the political standing of a newspaper. For example, let's take one kind of political act or incident or instance of your country. There is one bill that is going to be presented in the parliament, and one very strong editorial is coming from a very famous newspaper, let's say the Hindu, and they have written a detailed account of what this bill is, what is the history of that bill, what repercussions this bill will have, and they are putting up that bill into one or the other light. तो यहाँ किस तरह की स्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ political standing editorial has. इस चीज को समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम करा है. अब जो है मेरा रिसर्च, दिस विल हेल्प मी इन फ्रेमिंग माय हाइपोथेसिस. ये मुझे अपनी हाइपोथेसिस को फ्रेम करने में हेल्प करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो है वो क्या चीज है. पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है. अभिनव, प्रशांत, सुनाई नहीं रहा क्या बेटा? सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट हाइपोथेसिस. अभी हम लोग, ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी रिसर्च
प्रॉब्लम की और हम लोगों ने बात करी रिसर्च क्वेश्चन की। रिसर्च मैं एक बार 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 मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है आप में से कि मैम अगेन अगेन शी इज रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हैं। अगर कहीं पर भी आवाज़ कट रही है या कहीं पर भी आपको लग रहा है मेरी वॉइस कम हो रही है या कोई चीज़ फंबल हो रही है तो नहीं क्लियर होगा, सो दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग अगेन। हाइपोथेसिस से पहले हम लोगों ने बात करी रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन की। रिसर्च प्रॉब्लम इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर रिसर्च। आपके रिसर्च का स्टार्टिंग फेज है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम से मतलब ये है कि आप अपने रिसर्च की उसकी जो परेशानी है, परेशानी क्यों बोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, देन व्हाई आर यू रिसर्चिंग अबाउट इट? If everything you know is perfect, if everything you know is sorted, then there is no need to research about that thing. So that is why we say research problem, because you see some curiosity, you see something wrong, you want to understand something, and that is why you are doing your research. सो रिसर्च प्रॉब्लम इज द स्टार्टिंग फेज। पहले आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपके दिमाग में जो एरिया है आप उसके बारे में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप उसको सब एरियाज में डिवाइड करते हैं। सब एरियाज में क्यों डिवाइड करते हैं? बिकॉज एवरीथिंग कुड नॉट बी रिसर्च्ड एट द सेम टाइम। एक समय पर ही आप सभी चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप सब एरियाज को डिफाइन करते हो, और सब एरियाज को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो। So you started with journalism, and then you went to print journalism, then you went to newspapers, then you went to editorials. तो आपने देखा यहाँ पर कितना ज़्यादा डिवीजन हो रखा है, एक ब्रॉडर एरिया से जर्नलिज्म से प्रिंट, प्रिंट से न्यूज़पेपर्स, और हम एडिटोरियल्स तक आ गए। तो ये हमने अपने प्रॉब्लम को नैरो करने की कोशिश करी। अब हम एडिटोरियल्स में अपने प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करेंगे? हमारी प्रॉब्लम ये है कि क्या जो एडिटोरियल्स हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि वो एक न्यूज़पेपर की पॉलिटिकल स्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। दैट इज अवर रिसर्च प्रॉब्लम। इसको फिर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ के एडिटोरियल्स कैसे लिखे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो लोग हैं वो, फिर उनसे जुड़े हुए जो फेनोमेना, जो नॉर्मली बातचीत है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, इन सब को हम लोगों ने स्टडी करा, और स्टडी करके हमने अपना क्वेश्चन फ्रेम करा। सो व्हाट वी डिड, after doing a proper literature review, understanding our topic in detail, we framed the research question. Research question में हम लोगों ने how an editorial carries the political standing of a newspaper, ये क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया है। अब बारी आती है कि आप इसको टेस्ट कैसे करोगे। टेस्ट करने के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट इस क्वेश्चन का, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और उस चीज को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। सो द आउटकम ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव फ्रेम्ड फॉर योर रिसर्च एज पर योर गेस, एज पर योर टेंटेटिव आइडिया इज नोन एज हाइपोथेसिस। आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का जो रिजल्ट होने वाला है, वो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसको जब आप टेंटेटिव आइडिया को जब आप फ्रेम करते हो, गेस करते हो, और फ्यूचर में जो होने वाला है उसे एक तरीके से पहले ही प्रेडिक्ट करने की जो कोशिश करते हो, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। इसीलिए हाइपोथेसिस को एक एजुकेटेड गेस बोलते हैं। एजुकेटेड गैस का मतलब क्या है? आपने पहले लिटरेचर को रिव्यू करा, उसके बाद आप गैस कर रहे हो, आप ऐसे ही ब्लाइंड गैस नहीं कर रहे हैं। एंड देन यू ऑल्सो कॉल इट टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट से मतलब है किसी चीज के बारे में जो हो सकता है, एक टेंटेटिव आइडिया लगाना। टेंटेटिव आइडिया मतलब लगभग, जब हम कोई चीज बोलते हैं, अच्छा ठीक है आप आज इस चीज की खरीदारी करेंगे, लगभग 1000 रुपए लग जाएंगे। आप आज मैच होने वाला है, पिच को देखते हो आपको क्या लगता है कितना स्कोर खड़ा हो सकता है? 350 बन जाएंगे। ये जो टेंटेटिव आइडियाज है उनको हम अंदाजा लगाना, गैस करना ऐसे बोलते हैं। तो रिसर्च में जब आप रिसर्च क्वेश्चन का आउटकम क्या होगा उसका अंदाजा लगा रहे हैं, तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्या बेटा?
ओके, सी व्हाट आई एम सेइंग इज, आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करा, ब्रॉडर एरिया से सब एरियाज पे आए, सब एरियाज को और नैरो डाउन करा, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिव्यूड, व्हाट यू हैव रेड, द नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड, आपने एक क्वेश्चन फ्रेम करा, और उस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन का आउटकम आपको अपने रिसर्च में क्या मिलने वाला है, जब आप इसका अनुमान लगाते हैं, इसका अंदाजा लगाते हैं, उसको हम रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको यहाँ से कहीं जाना है और आप किसी आप उस जगह पे आज तक नहीं गए हैं, और आप अंदाज़ा लगाते हो कि अगर 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो लगभग हमें 2 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अगर हमारी स्पीड इतनी रही। तो ये जो अंदाज़ा लगाना है, इसको हम रिसर्च की लैंग्वेज में हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना कि आपके रिसर्च क्वेश्चन का जवाब आपको क्या मिलेगा, what will occur in your research. The guess that you do for this, the tentative idea you give for this is known as hypothesis. Okay? Okay. अब ये जो hypothesis है, वो हर एक रिसर्च क्वेश्चन के लिए दो तरीके से बनती है। हर एक क्वेश्चन के लिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉर एवरी रिसर्च क्वेश्चन यू विल हैव 2 hypotheses. And why will you have 2 hypotheses? I will explain that. One hypothesis is known as null hypothesis, and another hypothesis is known as alternative hypothesis. This is the terms that you have for 2 hypotheses that are constructed, that are formulated, that are framed for each research question. और जब मैं each research question बोल रही हूँ, उससे मतलब यह है कि कई भी, जब आपका रिसर्च बहुत छोटा होता है तो नॉर्मली आपके पास एक ही बड़ा रिसर्च क्वेश्चन होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। लेकिन जब आपका रिसर्च का लेवल बढ़ जाता है, व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च एट मच मोर, यू कुड से huge level where more samples are involved, more respondents are involved, and more people will have impact of it, तो वहाँ पर आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है, अगर आप एक बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो अलग अलग क्वेश्चन से कवर करी जाती है। जैसे मैंने अपनी जब पीएचडी करी थी, तो मेरे पास 4 ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चंस थे, और हर एक रिसर्च क्वेश्चन के लिए एक नल, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, स्पेशली जब आपकी रिसर्च जो है वो इन्फेरेंशियल हो, यानी कि जिसका कि आप इन्फ्रेंसेस, जिसका क्या नतीजा क्या होने वाला है, वो उस तरह का रिसर्च आप करते हैं, तो ज़रूर ही बनती है। अगर डिस्क्रिप्टिव होती है, सिर्फ आप वर्णन करने वाले हैं, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वहाँ पर नहीं ये बनती है। बट फॉर ईच रिसर्च क्वेश्चन you will have 2 hypotheses. One is null hypothesis, another is alternative hypothesis. एक एक करके हम लोग बात करेंगे ये दोनों hypothesis क्या हैं। जब आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं अपने दिमाग में सोचना, और उसके बेसिस पे आप एक रिसर्च क्वेश्चन भी फ्रेम कर लेते हैं अपने रिसर्च के लिए, अपने रिसर्च टॉपिक के लिए, एरिया के लिए, देन व्हाट हैपेंस इज, आप स्ट्रेट ना रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो एंड डू द रिसर्च वर्क दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर रिसर्च क्वेश्चन। बट देयर आर 2 थिंग्स। वन इज कि साइंस ये मानती है दैट इन, जैसे कि आपके लॉ में भी होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सेम यही चीज आपके रिसर्च में भी यूज होती है। आपके रिसर्च क्वेश्चन के 2 जवाब हो सकते हैं, और दोनों ही जवाब सही हो सकते हैं until unless you reject one. अगर आप एक को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, तब तक दोनों ही जवाब सही हो सकते हैं, और 2 सही जवाब के साथ आप कोई भी कंक्लूजन नहीं ले सकते। अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि इस जैसे मैंने अभी क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, इस क्रिकेट मैच में कौन जीतने वाला है, तो आप यही बोल सकते हो दिस टीम विल विन और दैट टीम विल विन। आप दोनों ही टीम को विनर नहीं बता सकते, इसीलिए आपको एक टीम को रिजेक्ट करना पड़ता है। और अपने रिसर्च क्वेश्चन में, हर रिसर्च क्वेश्चन में दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी एडिटोरियल का एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल लेकर करते हैं। एक
आंसर ये हो सकता है कि एडिटोरियल जो लिखे जाते हैं वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग बता रहे हैं न्यूज़पेपर की। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि जो एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं है पॉलिटिकल स्टैंडिंग के साथ, दे आर जस्ट सिंपली रिटन एज अ पीस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है और दोनों में से किसी एक पॉइंट को पहले आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। Okay, so for this purpose, you always have 2 hypotheses for your one research question, for your each research question. तो जो null hypothesis है वो आपके मेन रिसर्च आइडिया से अगेंस्ट जाती है, उसके अपोजिट जाती है, उसको नलिफाई करती है। इसलिए यहाँ पर वर्ड नलिफाई करना मतलब है उसको कैंसिल करती है। जैसे कि हमारा जो मेन रिसर्च क्वेश्चन था वो क्या था कि एडिटोरियल जो है वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग को बताता है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी एन एडिटोरियल represents or stands for its political standing, अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को दर्शाता है या उसके लिए उसका प्रतिनिधित्व करता है। नल जो हाइपोथेसिस है जो इससे अपोज होगी वहां पर आके ये वाला हमारा पॉइंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नफा हो जाएगा। Here we'll write editorial has no connection with political standing. एडिटोरियल का कोई कनेक्शन ही नहीं है पॉलिटिकल स्टैंडिंग के साथ। ओके, अब आप रिसर्च कैसे करेंगे? सबसे पहला काम जो आप करते हैं अपने रिसर्च में हाइपोथेसिस को बताने के बाद वो होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का। तो आप कुछ न्यूज़पेपर लेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए द हिंदू हमने ले लिया, द हिंदू का 1 महीने का हमने न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया और उनको हम चेक कर रहे हैं कि वो उनकी पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है उसको बता रहा है या नहीं बता रहा है। इफ ऑन द बेसिस ऑफ the test we are doing of this selection of editorials we can reject null, अगर हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं देन ओनली वी विल एक्सेप्ट इट। अगर ये एक्सेप्ट हो रही है, हमें कोई कनेक्शन नहीं नजर आता एडिटोरियल जो लिखे गए हैं द हिंदू में और उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग के बीच, तो हमें अपना ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन व्हाई यू गो फॉर 2 hypotheses and then you test one only so that you have this clear idea of accepting the other one with full surety कि आपने दूसरा जो ऑप्शन हो सकता था उसको रिजेक्ट कर दिया है। आपके पास एविडेंस है कि दूसरा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट करी जा चुकी है और अब आप अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई यू गो फॉर 2 hypotheses, null and alternative. Okay? ओके एक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके सिंपल एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि हम एक बहुत सिंपल सा टेस्ट करने वाले हैं एक क्लास के अंदर कि क्लास के जो बच्चे हैं जब उन्हें कोई टीचर जो है वो बहुत अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग यू कुड से ऑप्शन से पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, वीडियोस भी दिखाए जा रहे हैं, बुक रीडिंग भी हो रही है, इंटरेक्टिव सेशंस भी हो रहे हैं, तो उनके रिजल्ट पे असर पड़ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस क्लास में 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ग्रुप जिसमें कि वो टीचर इंटरेक्टिव मीन्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, दूसरे में नहीं। और उसको चेक करने के लिए हम अपनी हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे दैट द यूज ऑफ इंटरेक्टिव टेक्निक्स हैज impact on the understanding of the subject that has been taught. This is one hypothesis. दूसरी बिल्कुल इसके अपोजिट होगी, there is no significant impact of interactive means of teaching on the understanding of subject. तो पहले हम क्या, पहले हम उन 2 ग्रुप के बच्चों के बीच का
जो रिजल्ट है उसको चेक करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया गया, बस तरीका अलग था, तो दोनों ग्रुप का रिजल्ट क्या है, 100 में से कितने स्कोर हैं। अगर हमें शुरुआत में ही अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए रिजल्ट ये मिलने लग जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्कोर लगभग बराबर आ रहा है, तो हमें अपनी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और हमारी ऑल्टरनेटिव कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर हमें रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं कि जिनको इंटरेक्टिव मीन से पढ़ाया था उनका स्कोर अच्छा है, वो अपने वाइवा में अच्छा कर रहे हैं, तो हम अपना ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द यूज ऑफ नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट हेल्प्स यू इन गिविंग मच मोर कंफर्म रिजल्ट, much more authentic result of the hypothesis that you have formulated for your research topic. Okay? So this is all for today. आज हम लोगों